لیاقت صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے آج مجھے یہاں پہ بلایا۔ سب سے بڑی بات ہے لیاقت صاحب کہ آپ نے بزرگوں کو کوئی یاد کرے۔ اب یہ قدریں ختم ہو رہی ہیں، اب باپ کا جنازہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد 24 گھنٹے میں 38 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں اس کو بھول جاتے ہیں، دادے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ أليس الله بأحكم الحاكمين یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں جس کا نام چتارن والا وہ کس میدان میں ہردام جس کا نام چتارن والا وہ کس گزارش ہے لیاقت علی چودھری صاحب سے اس طرح جو کتاب رسم اجراء جس کا کیا جانا ہے وہ مہمان خصوصی اور ایران صدارت میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات کو پیش کی جائے گی کہ اپنی جانکاری جو ہے ہم تک پہنچائی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر مالک بلوچی صاحب خوبصورت فنکار میں یہاں بڑی گہرائی کی نظر رکھتے ہیں، خاص کرتے ہمارے یہاں کے جتنے اثاثہ ہیں ان کو اپنے ذاکر دیکھتا بھی ان کے حوالے سے آپ معلومات فراہم کرتے ہیں عوام تک بھی۔ ڈاکٹر ذاکر مالک بلوچی آپ کے روبرو آج کی اس کتاب پر تبصرہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اوتار عالم صاحب، محترم حضرت میاں الطاف دارمی صاحب، لیاقت صاحب، سبھی حضرات یہاں پہ موجود ہیں، سبھی قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، سبھی کو میرا سلام وآداب۔ سب سے پہلے مبارکباد دوں گا میں جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کو اور ڈاکٹر رمضان اعظم صاحب کو جو ہمیشہ انکریج کرتے ہیں یہاں کے رائٹرس کو۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے کیونکہ مصروفیات ہوں گی میاں الطاف صاحب کی، اور میں سیدھے جو ہے وہ مضمون پہ آتا ہوں۔ تبصرے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ 2 دن پہلے ڈاکٹر رمضان اعظم صاحب کا فون آیا، اسی دوران کتاب منگائی اور پڑھنے کی کوشش کی۔ 210 پیجز کی کتاب ہے، وہ کتاب بھی پڑھی اور چھوٹا سا ایک تبصرہ بھی لکھا 12-15 پیجز کا، لیکن وہ 12-15 پیجز جو ہے میں ڈاکٹر صاحب کو پکڑا دیتا ہوں، میں نے کم کر کے 5 پیجز کا وقت کا خیال رکھتے ہوئے 5 ہی پیجز کو اس کو رکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے سیدھے تبصرے پہ آتا ہوں۔ تاریخ کے اوراق پہ کچھ ایسی شخصیات ان چمکتے ستاروں کی مانند چمکتی ہیں جو نہ صرف اپنے خاندان اور قبیلے کی رہنمائی کرتی ہیں بلکہ اپنی دور اندیشی، خلوص، خدمات اور قربانیوں سے نسلوں کے لیے مشعلہ بن جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک تابندہ نام نمبردار چودھری مہردین کا ہے، جن کی سیرت و خدمات پر مبنی ایک کتاب جناب لیاقت علی چودھری کی کوششوں سے منظر عام پر آئی ہے۔ کتاب کی کمپوزنگ نسیم اختر صاحب کی ہے۔ 215 صفحات پر مشتمل کتاب اعلیٰ سخاوت و حب الوقت نمبردار چودھری مہردین میں 48 ذیلی موضوعات ہیں۔ کتاب کی ورق گردانی سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کتاب محض ایک شخصیت کی حیات و خدمات کے متعلق نہیں
بلکہ ایک سماجی، تہذیبی اور تاریخی دستاویز ہے جو علم و بصیرت، قربانی اور حب الوطنی اور اتحاد و بھائی چارے کا روشن پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ کتاب پر تبصرہ کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ چودھری مہر الدین کون تھے۔ نمبردار چودھری مہر الدین کا نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک ایسی عظیم، پرخلوص، غمگسار اور حق و شخصیت کا تصور ابھرتا ہے جس نے نہ صرف اپنے گاؤں دھنور ڈنڈیا کو فخر بخشا بلکہ راجوری کے علاقے میں ایک روشن مثال قائم کی۔ آپ کی پیدائش 1880 عیسوی میں گاؤں دھنور میں، دھنور ڈنڈیا میں ہوئی۔ یہ گاؤں آپ کے خاندان سے منسوب ہے اور آج بھی اس نسبت پر فخر کرتا ہے۔ ان کے والد جناب چودھری روشن الدین ایک معروف درد دل رکھنے والے اور اعلیٰ سخاوت کے انسان تھے۔ ان کے دسترخوان پر کبھی قلت نہ دیکھی گئی۔ ان کی خصوصیات کو نمبردین چودھری مہر الدین صاحب نے نہ صرف اپنایا بلکہ ان کو ایک نئی وسعت دی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے مقامی اسلامی مکتب سے حاصل کی، لیکن اصل تعلیم و تربیت آپ کو اپنے والد کے ساتھ عوامی خدمات میں عملی شرکت سے ملی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی آپ اپنے والد کے شانہ بشانہ عوامی فلاح و بہبود میں لگ گئے۔ وقت کے ساتھ آپ راجوری کے بڑے زمیندار اور نمبرداروں کے سربراہ بنے اور ساری زندگی یہی منصب آپ کے پاس رہا۔ آپ کا دل بے زمین، بے سہارا اور غریب لوگوں کے لیے ہمیشہ دھڑکتا رہا۔ آپ نے سینکڑوں کنال ذاتی زمین بنا کسی ذات، برادری یا مذہب کے امتیاز کے عوام میں تقسیم کر دی۔ کئی افراد کو مفت مکان دیے اور زمینیں دی، کئی کو مالی مدد دی اور سینکڑوں کو روزگار دیا۔ آپ نے چھوٹے زمینداروں سے مالیہ نہ لینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا، جس کے نتیجے میں سرکاری اثر و جاری ہوا اور قانونی طور پر چھوٹے زمینداروں کو ریلیف ملا۔ 1947 عیسوی اور 1965 عیسوی کی ہجرتوں اور جنگوں میں جب ہر طرف بدامنی کا دور تھا، چودھری مہر الدین اپنی زمین پر ڈٹے رہے۔ وہ غدر میں وطن چھوڑنے کو زمین کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب لوگ سرحدیں پار کر رہے تھے، آپ اقلیتوں کے لیے راشن، پناہ اور تحفظ کا بندوبست کر رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں آپ کی قیادت نے ثابت کیا کہ انسانیت، اتحاد اور بھائی چارہ اصل مذہب ہوتا ہے۔ آپ کی دیانتداری اور عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ آپ کی زندگی میں گاؤں میں پولیس مداخلت کی نوبت کبھی بھی نہیں آئی۔ اگر کسی کو پولیس حراست میں لیا بھی جاتا تھا تو آپ اپنی ذاتی ضمانت پر اسے رہا کرتے تھے اور اسے دوبارہ معاشرے میں عزت سے کھڑا ہونے کا موقع دیتے۔ یہی نہیں، آپ نے درجنوں کنال زمین بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے لیے وقف کر دی تاکہ آنے والی نسلیں علم کی روشنی سے فیضیاب ہوں۔ کتاب کو ترتیب دینے میں جس محنت، تحقیق اور خلوص کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ قابل رشک اور قابل تقلید ہے۔ اس میں نمبردار صاحب کی زندگی کو مختلف عنوانات کے تحت نہایت دلنشین اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب کا آغاز نمبردین چودھری مہر الدین کے خاندانی پس منظر سے ہوتا ہے۔ کتاب میں اس دور کے تعلیمی نظام، نمبردار چودھری مہر الدین کے آباء و اجداد اور اس زمانے میں لوگوں کے حالات، لوگوں کی مشکلات اور مقامی زبانوں کی بدحالی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کے روحانی تعلق کو بھی کتاب میں جگہ دی گئی ہے۔ حضرت میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے روحانی روابط ان کے باطن کی پاکیزگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ ایک علم دوست اور بصیرت والے انسان تھے۔ کتاب میں نمبردار چودھری مہر الدین کے انقلابی دور کو خاص جگہ دی گئی ہے۔ 1947 عیسوی کی جنگ میں ان کا وطن سے نہ ہٹنے کا مصمم ارادہ، ان کی بہادری، ثابت قدمی اور حب الوطنی کے جذبات کو خاص طور کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ چودھری لیاقت علی نے لکھا ہے کہ اس دور میں نمبردار نے بودیا شاہ جی اور لکھی شاہ جی کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دی، جو ان کی انسان دوستی کی گواہی ہے۔ اس کتاب کے اوراق پلٹتے پلٹتے ہمیں اس دور کے حالات اور واقعات صاف آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان حالات میں جناب نمبردار
जनाब नंबरदार मेहरदीन की कुर्बानी, महजबी भाईचारा का जज्बा, हुब्बुल वतनी का जज्बा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा, दूसरों के लिए दर्द, दूसरे कौमों का तहफ़्फ़ुज़, ये सब अवसाफ को चौधरी लियाकत अली ने मुनफरिद अंदाज में दर्ज किया है। चौधरी लियाकत अली ने अवामी तासरात को भी किताब में शामिल किया है। साईं अब्दुर्रहमान के हवाले से 1965 ईस्वी के जंग के दौर का एक अहम वाक़ा, चौधरी मेहदी हुसैन की ज़बानी 1966 की कहानी, धनौर गोरसिया के हाजी अब्दुल अजीज की ज़बानी 1965 ईस्वी का अहम वाक़ा, मोहम्मद मुंशी छुई की ज़बानी 1965 के हालात का तज़किरा, चौधरी छत्तल चंदन नगर डनीधार के साथ 1947 में दस्त शफ़क़त के मामलात और कई अहम तारीखी वाक़ात का तज़किरा लोगों के हवाले से दर्ज है, जिनसे उस दौर के हालात और तारीख का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। 1952 में राजौरी की तारीख के सबसे बड़े सैलाब को भी मुसन्निफ ने अपना मौजू बनाया है और तफसील से इस सैलाब की तबाही को अल्फाज दिए हैं। किताब में उनकी जाती जिंदगी, घोड़े पर सफर, बेटी का सरहद अबूर करना, बेटे का तहसीलदार बनना जैसे वाक़ात को इंतहाई खूबसूरती के साथ बयान किया गया है, जो उनकी जिंदगी का एक मुकम्मल और दिलनशीन खाका पेश करते हैं। जनाब मेहरदीन की वफात 1973 में हुई थी। उनकी नमाज जनाजा हजरत मौलाना सलाम मोहम्मद बेला वालों ने अदा करवाई थी। उनकी कब्र घर के साथ ही मौजूद मकामी कब्रिस्तान में है। आखिर में शामिल इज़हार तशक्कुर, मंजूम खराज अकीदत, अब्दुल करीम रहमती और खानदान का शजाए नसब इस किताब को एक अदबी, जज्बाती और खानदानी दस्तावेज बना देते हैं। किताब में आम फहम ज़बान को इस्तेमाल किया गया है, जिससे हर कारी को मुसन्निफ की बात पूरी तरह समझ आ जाती है। किताब में चौधरी मेहरदीन के बचपन की यादों को कम जगह दी गई है। उस दौर की रिवायात, पुराने रस्म व रिवाज, कबायलियों के हमलों की तफसीलात, इंडियन आर्मी की जानिब से 13 अप्रैल 1948 के रोज राजौरी को दोबारा अपने कब्जे में करने के अहम वाक़े को भी किताब में शामिल किया जा सकता था। जब हम शख्सियत पर लिखते हैं तो सिर्फ मस्बत पहलू को उजागर करते हैं। हो सकता है कि चौधरी मेहरदीन का कोई भी मनफी पहलू न रहा हो और शायद इसीलिए उनके सिर्फ मस्बत पहलू को ही तहरीर का मौजू बनाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर यह किताब सिर्फ एक फर्द की जिंदगी का हाथा नहीं, बल्कि पूरे इलाके की समाजी तारीख, रिवायात, इक़दार और कौमी खिदमत के जज्बे की अक्कासी करती है। जनाब लियाकत अली चौधरी ने इस किताब के जरिए एक अहम शख्स को तारीख के अवराक में महफूज कर दिया है। उनकी ये कोशिश काबिल तहसीन है और ये उम्मीद है कि नई नस्ल इससे रहनुमाई हासिल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कुरैशी साहब, बड़ा मुख्तसर और जामी जैसा मजमून था, जिसकी तफसीर मेरे पास मौजूद आ मेरे पास पहुंच गई है। मुश्ताक अहमद मुश्ताक एक शायर है, कहते हैं कि क्या ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे और अब कोई कहीं रहता है। आज के मेहमान खुसूसी हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं। उनके तारुफ के लिए मैं ये कहूँगा दो मिसरे के किसी को थमाता है चाबियां घर की, किसी को थमाता है चाबियां घर की, खुदा हर एक को अपना पता नहीं देता। चार मिसरों के साथ में उन्हें खुशामदीद कहता हूँ कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। बड़े मुनासिब शेर है इनके लिए चार मिसरे के। सुना है लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल जुड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मेरी गुजारिश है आज के मेहमान खुसूसी मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ अहमद नारवी साहब से कि आप सब तशरीफ लाएं, आज के हवाले से अपने बयानात से नवाजें। ये वक्त ही ऐसा ही है, ज़माना ही ऐसा ही है। तो हालांकि उसका सबसे बड़ा असासा जो किसी आदमी का होता है उसके बुज़ुर्ग ही होते हैं, उसकी तारीख़ ही होती है। तो उनको वक्तन फ़वक्तन याद करना यही सबसे बड़ी बात है, यही इसाल सवाब है उन बुज़ुर्गों के लिए भी। तो आपने ये एक
अच्छा काम किया, नेक काम किया, आपने इस सिलसिले में मेहनत की, दिलचस्पी दिखाई, तो मुझे यकीन है कि रजौरी पुंछ में बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है आज की जनरेशन को, तो उनके लोग भी अपने बुजुर्गों के बारे में वक्तन फ़वक्तन लोगों को आगाह करते रहेंगे। अब आजकल किताबें लिखने का, पढ़ने का ये सब सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, इसके साथ किसी को दिलचस्पी नहीं रही। और दिलचस्पी होनी चाहिए, तारीख़ का पता होना चाहिए, हाल का होना चाहिए, आने वाले मुस्तक़बिल के चैलेंज के बारे में पता होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में पता हो, इन चीज़ों के बारे में आदमी गौर करे तो वो ज़्यादा सीख सकता है, बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि एक तजर्बा मिलता है, एक उसको हालात का जब पता लगता है कि क्या मामलात थे, क्या पोजीशन थी, आज से पहले 60 साल रजौरी की क्या पोजीशन थी, सड़क की क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या थी, तो फिर वो आज के साथ उसका मुआवजा करता है कि उस वक्त क्या हालात थे, आज क्या थे, बेहतर क्या था, क्रिटिसिज्म क्या हुआ था। तो आपने अपने बुज़ुर्गों के बारे में ये किताब लिखी, आप भी चाहेंगे कि लोग इस किताब को पढ़ें, क्योंकि लिखने वाले ने जो मेहनत करता है उसका सबसे बड़ा मुआवजा यही है कि उसको लोग पढ़ें। सबसे बड़ी बात यही है जो अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ मैंने ये बुक शॉप मैंने दिल्ली में देखी जो अब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी किताब की, एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी बुक शॉप थी। मैं भी वहीं से अक्सर जब कोई किताब ख़रीदनी होती तो ख़रीदता था। अब वो बंद हो गई है क्योंकि लोग उसको पढ़ते नहीं। ये किताब पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। एक सबसे अच्छा काम जो है वक्त गुजारने के लिए, सीखने के लिए, किताब से बेहतर कोई चीज़ भी नहीं। दोनों चीज़ें होती हैं, तो आदमी का वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है और एक आदमी सीखता है। लाइब्रेरियाँ हैं, आपने देखा, एक ख़जाना है, एक असासा है, लेकिन उन लाइब्रेरियों में जाने वाले, पढ़ने वाले अब वो बहुत कम रह गए हैं। मेरे दादा साहब के बारे में, परदादा साहब के बारे में, ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब, उनको किताबें पढ़ने की इतनी शौक़ थी कि कोई भी किताब के बारे में उनको पता लगे, चाहे वो 50 सफ़े की हो या चाहे 500 सफ़े की हो, चाहे उस लिखने वाले से उनके सियासी इख्तिलाफ़ात हों, समाजी हों या किसी किस्म की हो, लेकिन वो किताब ज़रूर ढूंढ के पढ़ते थे। जब भी किताबों का मेला लगता था, दिल्ली में लगता था, श्रीनगर में लगता था, तो वो जाते थे और वहाँ से बोरियां भर के किताबों की लाते थे। तो उन किताबों से मुझे भी पता लगता था कि बड़े सगीर की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान में सियासी वडेरे क्या करते थे। उन्होंने एक किताब जब वो पाकिस्तान गए थे तो वहाँ से लाई थी, तो उस पर मुझे पता लगा था कि सिंध में भुट्टो ख़ानदान की कितनी ज़मीनें हैं और कितना बड़ा उनका 75 किलोमीटर का के बारे में लिखा हुआ था कि कोई आदमी जा रहा था तो उसने कहा कि जहाँ से भुट्टो ख़ानदान की ज़मीनें शुरू हुई हैं, मैं सो गया हूँ, अब मुझे जगाना, जहाँ ये ख़त्म हुई। तो वो 75 मिनट बाद जागा, उसने पूछा कि हुई ख़त्म? उसने कहा ड्राइवर ने अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो बहुत कुछ आदमी किताबों से सीखता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है। आपने अपने दादा साहब के मुतल्लिक़ ये किताब लिखी तो रजौरी के लोगों को, रहने वालों को पता लगा कि उस वक्त के हालात यहाँ क्या थे, उस वक्त के अफसरों का क्या रवैया था, उस वक्त समाज में क्या चीज़ें थीं।
नंबरदार का रोल आज भी बहुत अहम है। कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान भी अगर कोई एक इदारा कायम रहा या किसी एक इदारे ने काम किया तो वो नंबरदार ने किया, उसको फोर्सेस वाले मुखिया कहते थे, पता नहीं आप यहाँ मुखिया कहते हैं या यहाँ नंबरदार साहब भी कहते थे, लेकिन वही इन टच रहा लोगों को बचाने में भी, उनकी बात करने में भी। तो उस वक़्त जब और इदारे काम नहीं करते थे या पहुंच नहीं हो सकती थी तो जाहिर है कि नंबरदार के घर पे लोगों का रश रहना एक नेचुरल बात थी, कुदरती बात थी। चाहे वो फिर उस वक़्त पटवारी भी एक ही होगा पूरी रजौरी में, तो यही इदारे जो थे यही काम करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, और इनके दरमियान एक राब्ता रहता था। और एक गरीब आदमी को जिसकी कोई रसाई नहीं होती थी, नंबरदार उसके सिलसिले में पुल बनता था एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, लोगों के दरमियान। नंबरदारों के घर सुबह चाय पीने वाले 20-30 उस वक़्त भी होते होंगे, उस वक़्त ज़्यादा होंगे, आज भी होते हैं। तो नंबरदारों का हमेशा ये गिला भी रहा कि उस हिसाब से हमें कभी तनख्वाह भी नहीं मिली, जो बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने किताब में, मैंने भी कोशिश की किताब को नज़र देने की, पढ़ने की, मुझे भी शौक़ है जब कभी मौका मिलता है। तो मैं भी एक चीज़ नहीं देख सका कि उस वक़्त इनकी तनख्वाह कितनी थी, कि थी भी या नहीं थी नंबरदार की। तो उसका ये आगे से ज़रूर ख्याल रखेंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि उस वक़्त क्या इनकी तनख्वाह थी। इन्होंने इनके बारे में जो जिस तरह मेरे से पहले इस किताब पे तबसरा हुआ और कहा कि वो कितनी मेहनत करते थे लोगों को बचाने के सिलसिले में। फिर जब 47 के बाद यहाँ नामसाइद हालात रहे, बहुत अरसे तक रहे, या उससे पहले भी कभी जो ज़माना गुज़रा वो भी एक अजीब किस्म का ज़माना था। परेशान हाल लोग थे, जुल्म होता था, जबर होता था। तो वो चीज़ें उस वक़्त भी रहीं। तो इन लोगों ने उस वक़्त कंट्रीब्यूट किया। तो उस वक़्त के मशीर माल से भी इन्होंने मुलाकात की, वो भी इनसे मिलने आया। ऑफिसरान जो होते थे उस वक़्त तो तहसीलदार ही होता था, वो इनकी इज़्ज़त करता था, इस वजह से कि ये लोगों के मसले लेके जाते थे, इंसाफ की बात करते थे। फिर इन्होंने उर्दू पे उस वक़्त भी पर्दे के सिलसिले में एक मुहिम चलाई कि वो कितनी ज़रूरी है। आपसी झगड़े करने ये चीज़ें चलती रहती हैं बरादरी में, लेकिन इनका रोल यही रहा कि ये चीज़ें भी ज़्यादा बढ़े ना, ये थाने तक ना जाएं। और उस ज़माने में पुलिस भी इतबार करती थी अपने इन ही लोगों पर, इन पर तो ज़्यादा इतबार किया जाता था। लोग कहीं, मैंने जो किताब में पढ़ा, लोग पाकिस्तान से वापस आए तो इन्होंने ही पुलिस को कहा कि इनकी ज़िम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो उन्होंने भी फिर नहीं पूछा, उन्होंने भी इतबार किया। तो इतबार इसीलिए किया कि इनका किरदार ठीक था, ये काबिल इतबार थे, इसलिए उन्होंने उन पर पूरे तरीके से इतबार किया। फिर उन्होंने मेरे दादा साहब के मतलब लिखा है कि जब उनसे मुलाकात हुई, ये अस्पताल में एडमिट थे, आपने फर्जंद को भेजा, संतरे मंगवाए, तो उन्होंने कहा कि उनको बोलना कि मेरे लिए दुआ करें। तो वो जब गए तो आगे जो उस वक्त बाबा साहब के साथ लोग थे तो उन्होंने कहा कि तुम इस वक्त में शाम को आना, इस वक्त ये आराम कर रहे हैं। तो उन्होंने आवाज़ दी कि ये बाहर कौन है, इसको मेरे पास आने दो। तो उन्होंने कहा जी इस तरह एक आदमी आया है संतरा लेके। तो वो आए, उन्होंने अपने वालिद साहब का इनका कहा कि मुझे उन्होंने भेजा है, वो अस्पताल में दाखिल हैं। तो वो पता नहीं 11 संतरे थे शायद, तो उन्होंने एक रख लिया तो बाकी दुआ करके वापस किए। तो कहा ये मेरी तरफ से उनको दे दो। तो उनको आज शाम को आप मेरे पास लाना,
मैं दुआ भी करूँगा और मुलाकात भी करना चाहता हूँ। तो इसी तरह मेरे वालिद साहब के मतलब भी लिखा है, जो और इस इलाके के उस वक्त के लोग थे उनके बारे में भी लिखा है। और कुछ आज उस वक्त के लोग तो नहीं रहे, उनकी औलाद है, तो उन्होंने भी जो कुछ अपने बुजुर्गों से सुना इस किताब में, उनके भी तासरात हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं ले लूँगा, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमें सुनने को मिली बड़े आसान लफ्ज़ों में कि वफ़ा, एहसास, हमदर्दी, मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें। ज़ुलेख़ा-ए अज़ीज़ा, बात ये है भला घाटे का सौदा क्यों करें। ये हमारे आज के समाज की सूरत हाल है जो बड़े डिटेल से सर ने समझाई है। और एक बात और, पोस्ट मॉडर्निज़म की एक थ्योरी है, वो सर ने बिल्कुल डिटेल से समझा दी कि हम अपने माजी से रोशनी लेकर अपने हाल में जो हम जिस ज़माने में हम चल रहे हैं उसमें उस पर काम करके वो अपने मुस्तक़बिल के लिए खूबसूरत रोशनी, मुस्तक़बिल का रोशन मुस्तक़बिल बना सकते हैं। ये आज के इनका जो पूरा हमारे साथ जो गुफ्तगू थी, खूबसूरत गुफ्तगू, हम शुक्रगुज़ार हैं कि इतने बेहतरीन लफ्ज़ आपने हमें अनायत फरमाए हैं। हमारे साथ यहाँ हमारे सदारत में मौजूद है मेरे हम क्लास परवेज़ मिर्ज़ा साहब, प्रोफेसर कादरी साहब, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सब जितने भी हज़रात हैं सर, आज का जो ये मेहरदीन नमरदार चौधरी मेहरदीन अवार्ड है, इस बार जो नॉमिनेट किया है हमारी यहाँ की तहरीक पंजाब की इल्मी अदबी सहाफ़ी शख्सियत जनाब अब्दुलसलाम मीर साहब को दिया जाना है। मेहमान ख़ुसूस के हाथों मेरी गुजारिश है सर कि तमाम हज़रात तालीम के साथ ये पहला अवार्ड है, इससे नवाजा जा रहा है अब्दुलसलाम मीर साहब को। आपका यकीनन बहुत बड़ा काम है, इक़बालियात के हवाले से आपकी बड़ी मालूमात है। उसके अलावा एक सहाफ़त में एक बड़ा काम किया है आपने, किताब पंजाब में इनमें आपकी लोक जुबान में आपने तमाम मेहमान सब ये बिल्कुल मुख्तसर जैसी महफिल और बड़ी और मर्ज और बामानी महफिल, इन पूरे दिनों की महफिलों से सबसे अजीम महफिल इसलिए है कि हमने अपनी तारीख को पढ़ा है, अपनी तारीख के हवाले से मालूमात हमारे हाथ में पहुंची है, हमारे अज़हान तक पहुंची है। और हमारे नई नस्लों के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता ये है कि अपने हमारे यहाँ बहुत सारे हीरे हैं जिन्हें तलाश करना है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर आलमदार आदम अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से। और सबसे गुजारिश है कि सर चाय नोशी के लिए आप